بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. دوستو معاملہ کچھ اس پرکار ہے، بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ سبھی کو سمجھ میں آ جائے. لیکن جتنے بھی شیعہ سنی کرنے والے جو گندگی ہے جن لوگوں کے دل میں شیعہ سنی والی، ان کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سن لیجئے پہلے خبر. ابھی وہ کمنٹ میں سیدھا ہگنا شروع کر دیں گے، فوراً شیعہ سنی شروع کر دیں گے. اور یہاں پر جان لیجئے، بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا انسٹاگرام پہ آ کے کہ یہاں پر شیعہ سنی میری ویڈیو کی وجہ سے شیعہ سنی میں یونٹی بڑھ رہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے، لوگوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے، اب لوگ سمجھدار ہو رہے ہیں. تو اب بہت سارے اندھ بھکت ایسے ہیں، بہت سارے جو چاہتے ہیں کہ مسلم مضبوط نہ ہو، تو وہ آپ کے اور ہمارے فیک نام سے، مسلمان کے فیک نام سے آئی ڈی بنا کے شیعہ سنی پھیلا رہے ہیں. تو سترک رہیے گا. کسی کا ایسا کمنٹ دکھ جائے جو مسلمان کے خلاف ہو، شیعہ سنی کے خلاف ہو، اور کوئی مسلمان ہی بول رہا ہو، تو یاد رکھیے گا وہ کون سا بندہ ہے، سمجھ لیجئے گا. دوستو اب چلیے. ہلو. ہاں جی ہلو. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ بھائی فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آپ؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ میں راشد رضا بات کر رہا ہوں. راشد رضا. اچھا اچھا، کہاں سے؟ آپ کو کل بھی 2 مرتبہ کال کیے تھے، آج اور ابھی بھی کر رہا ہوں، لیکن فون ہی نہیں اٹھا رہے ہو. تو جناب کال چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی، ذرا یہ بتائیں. کہیں بات ہو رہی تھی کہ نہیں؟ آپ میری بات سنو. میں نے 2 مرتبہ کال کری تو آپ کا جو نمبر تھا وہ بزی بتا رہا تھا، لیکن ابھی جب تو بھائی جب بزی بتا رہا تھا تو بات ہی چل رہی ہوگی نا. میں نے آپ کو بولا کہ آپ کا جب فون آیا اچھا تھا ایک تو بات بزی بتاؤ، تھا. سنو. اچھا آپ ہلو کون بول رہے ہلو. ہیں پہلے یہ بتائیے. ارے میں راشد رضا بول رہا ہوں. اچھا کہاں سے ہیں راشد رضا صاحب؟ اب میں ہوں بھائی کہیں سے بھی. اب میں نے اپنا نام بولیے. بتا دیا. اچھا سنی انفی بریلوی ہیں؟ ہاں بالکل. اچھا اچھا جی بولیے. آپ یہ بتاؤ، آپ دوسرے بندے کو کیا پاگل سمجھتے ہو؟ بالکل. کیوں، کیا ہوا، کوئی بات؟ یا مطلب تمہیں سنو میری بات کو سنو، یا پھر سنیوں میں بھی تمہیں یہ وہاں بھی 2 بندے نظر آتے ہیں؟ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے بھائی ہیں میرے، سب میرے سر کے تاج ہیں. اور جتنے بھی تھانوی کافر کی ناجائز اولادیں ہیں وہ سب جوتے کی نوک پر. سمجھے؟ تو میں تو سب اہل سنت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں بھائی. نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑھیا بات اور ہے. جتنے بھی تھانوی کافر کی ناجائز اولادیں ہیں جوتے کی نوک پر. بات چل رہی تھی جب آپ کال کر رہے تھے. یار میں آپ کی بات مان تو رہا ہوں کہ بات چل رہی تھی، لیکن آپ بھی تو تو میری یار مانو. اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے یار؟ ناراض نہیں، یہ بتائیے. آپ بات ایسی کر رہے ہو کہ کال چل رہی. میں نے خود اس بات کا اقرار کرا کہ میں نے 2 دفعہ کری تھی تو آپ کا نمبر بزی تھا، پھر بعد میں کر رہا ہوں تو آپ اٹھا نہیں رہے ہو. کل بھی 2 دفعہ آپ کو کال کی تھی، اب کل بھی نہیں اٹھائی آپ نے. اچھا تو یہ بتائیے بھائی جان، کیا بندے کا کوئی اپنا نجی کام نہیں ہوتا ہے؟ کیا اپنی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا پتا میں کسی کام میں مصروف ہو گیا ہوں؟ نہیں، بالکل بالکل آپ کی بات جو ہے وہ جائز ہے. آپ کو میں نے کل 2 مرتبہ کال کی تو آپ دیکھ کر کے چیک بھی تو کر سکتے ہیں. اب دیکھیے اذان ہو رہی ہے، آپ سے کچھ بات کرنا ہے مجھے. ٹھیک ہے، میں آپ سے جی بولیے، کل بتائیے. بات کر لوں گا. میں آپ جی سے کل بتائیے بات کر بتائیے. لوں گا. جی اب ابھی بتا دیجیے، ابھی بتا دیجیے. اب کیا نہیں پتا کر بات آپ کال کریں، میں کس کام میں ہوں، کس کام میں نہیں ہوں، فون آپ کا تو آپ اٹھاتا وقت ہوں نہیں بتا دیں. اٹھاتا ہوں. اچھا آپ وقت بتا دیں کس ٹائم کروں آپ سے بات. میں کسی کو کوئی وقت ہی نہیں بتاتا ہوں کیونکہ میرے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. اچھا وہاں کون سی اذان ہو رہی ہے اس ٹائم؟ مغرب کی نا؟ جی جی. اچھا کون سی جگہ سے ہیں آپ؟ میں جگہ مت پوچھو یار، پورا نام بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی ہمارے یہاں وقت ہے تھوڑا سا اذان میں، تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون سی جگہ سے ہیں. وقت کہاں رہتے ہو؟ رامپور رہتے ہو آپ؟ جی ہاں. جی جی جی. ہاں تو میں بھی تھوڑا بہت آپ کے یہی قریب میں ہوں، زیادہ دور نہیں ہوں. یار تو آپ تو ایسے چھپا رہے ہو جیسے وہابی دیوبندی چھپاتے ہیں نا، مطلب اپنی پہچان اور اپنی منافقت. تو یار بریلی کی تو اتنا نہیں چھپاتے. یہ چھوڑو، میں کہاں سے ہوں، اچھا کون ہوں. تھانوی جی کو کافر مانتے ہیں نا؟ کون، میں؟ ہاں. اچھا ایک بات بتاؤ. نہیں 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 بول دیجیے. تھانوی سنو جی کو تو سنو کافر سنو مانتے ہیں نا؟ سنو سنو ارے میری بریلوی بات تو تو کافر مانتے ہیں، اور آپ نے راشد رضا اپنا نام بتایا ہے تو واقعی تھانوی جی کو کافر مانتے ہوں گے آپ. میری بات سنو گے؟ بالکل سنیں گے. سب سے بڑی بات تو آپ کے اندر پتہ ہے کیا ہے؟ جی. کہ آپ سننا نہیں چاہتے ہو. تو بتا دیجیے نا تھانوی جی کو آپ کیا مانتے ہیں.
सुना दीजिए, सुनने के लिए इंतजार कर। हाँ तो थानवी काफिर है, बिल्कुल काफिर है। अब तो हो गया ठीक, बताइए, या और कोई उसके आलिम का नाम दो, वो भी काफिर है। हाँ, बताओ। मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी हाँ वो भी सबके कादिल सब अहमद काफिर हैं। अल्लाह हाँ, अकबर, माशाअल्लाह हाँ सबके सबने सालों ने कुफ्र किया। माशाअल्लाह। और अच्छा और बोलो, और कोई जी, बस। सबूत दूं? नहीं नहीं नहीं, कोई सबूत मत दीजिए, मगर आपका जो बात करने का अंदाज है भाई बिल्कुल थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि मेरे पास इतने लोग कॉल करते हैं और ऐसे ऐसे कॉल करते हैं कि कॉल करके बदतमीजी भी करते हैं, गाली बकते हैं। कॉल मैंने सुना है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ, मैं कॉल रिसीव करता हूँ, उधर से कॉल कट कर देते हैं, फिर जब कॉल कट कर देते हैं वो फिर से दोबारा से करते हैं, फिर मैं रिसीव करता हूँ, फिर कॉल कट कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ आप जो काम कर रहे हो अभी हाँ। बहुत अच्छा काम है, अच्छा बेशक बहुत अच्छा काम है, अच्छा। लेकिन हालात को थोड़ा सा समझ लो। इस वक्त जो हालात जो है ना बने हुए, अच्छा, इस्लाम में हालात कभी देखे हैं? अगर हालात देखे जाते तो 313 जिस टाइम मुसलमान थे उस टाइम देखे जाते कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम है तो जंग क्यों की जाए। अच्छा एक बात, मैं आपसे थोड़ा रजाग्राफी के बारे में बात करने के लिए फोन किया है। कौन रजा समझ रहे हो? आप नहीं जानते हो, उसके खिलाफ आपने पूरा एक वीडियो बना दिया और उसमें वो फारूक खान रजवी साहब की वीडियो दिखा दी और उसको जनाब, शिया मैंने साबित नहीं कर बनाया दिया। है, आपको मैं बोल दूं, मैंने नहीं बनाया है। ये बताए वो अजहरी खंजर नाम से किसका चैनल है? हाँ, वो किसी और भाई का चैनल है। किसी और भाई जी। किसका चैनल है यार? अच्छा, वो जो क्या नाम ले रहे हो, रजा क्या? रजाग्राफी वाला, रजाग्राफी रजाग्राफी। वाला, हाँ मोहम्मद अच्छा, रजा। तो ये कहाँ से हैं और कौन है? वो कहते हैं कि शिया सुन्नी ये सब जो है वो एक हो जाओ, तो एक कैसे हो जाएंगे भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हैं होंगे और एक फिरका जन्नती होगा, बाकी 72 के 72 जहन्नमी होंगे। ये तो बात तो फिर बिल्कुल एक सही कैसे हो है। जाए? कुफ्र और ईमान कैसे एक हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। अब बात बड़े प्यार से और स्लो स्लो जो होता है ना अहले सुन्नत वल जमात का जो बोलने का होता है लहजा, जो जी। सरकार आला हजरत हमको तालीम दी है, उसी अंदाज में रह करके बात करो। आप तो कौन है मैं तो आपके उसी अंदाज में बात कर रहा हूँ ना भाईजान, आपसे कौन है आपके पीरो आपसे मैंने गाली थोड़ी बकी है। नहीं, कौन है आपके पीरो मुर्शिद? मेरे पीर मुर्शिद वो हैं जो बरेली शरीफ का भी हेड ऑफिस है। हाँ तो बताइए। जी हाँ, हैं? मेरे पीर मुर्शिद का नाम है हुजूर सैयद नजीब हैदर अली मियां साहब कबिला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी आले रसूल। अच्छा माशाअल्लाह, जी जनाब। बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा आप जो हैं, आप इससे पहले देवबंदी थे ना? देवबंदियों में चला गया था, देवबंदियों में पढ़ाई करता था, मैं देवबंदी था नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये सारे शैतान कौन सी बला है। ठीक है, मैं इन शैतानों में रह गया था और वो कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। ठीक है, हाँ ठीक। तो मेरी भी फितरत वही वाली होने लगी थी और मज़ारात औलिया को मैं पहले सलाम करता था, मगर इन शैतानों में रहने के बाद मेरे दिल में वही नफरतें पैदा हुई जो इन शैतानों ने नफरतें पैदा की हैं, जो ये नफरतें पैदा करते हैं। ये कहते हैं कि किसी अल्लाह के वली को या किसी मज़ार को अगर सलाम किया तो शिर्क हो जाएगा, माज़अल्लाह। तो मुझे डर लगता था कि यार मैं कहीं अल्लाह के वली को सलाम करता हूं, ऐसा ना हो जाए कि शिर्क हो जाए। जो इन शैतानों ने जो जहर भरा था ना वो काम करने लगा था, मगर कभी किसी भी अल्लाह के वली के लिए दिल से बुरा नहीं निकला। बस डर लगता था कि यार करूं ना करूं, सलाम करूं ना करूं, सलाम करूं ना करूं, मगर सलाम कर लेता था। बात सुनिए जी, बात मैं जो आपसे पूछता हूँ वो बताना। अच्छा आप इन देवबंदियों में थे या वहाबी में, मतलब अहले हदीसों में या शिया में? देव के बंदर थे थानवी वाले, थानवी वाले। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, टांडा बादली जगह का नाम है। कहाँ? टांडा बादली, टांडा बादली। हाँ ठीक ठीक ठीक। जानते हैं ना टांडा बादली? हाँ हाँ जी भाईजान, मैं वहाँ था। अच्छा वहाँ थे आप, तो इनके बीच में रहे थे आप? अरे यार इन्हीं में रहा हूँ, इन्हीं में पढ़ा हूँ मेरे भाई। 10-11 साल मैंने इनके मदरसे में पढ़ाई की है। निकलने मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये लोग लाइल्म आदमी को पकड़ते। हाँ तो देखिए भाई, मैं तो बताता हूँ, मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ सब कुछ। चलो अच्छी बात है, आपको अल्लाह ने हिदायत दे दी। जी बेशक।
मैं आपसे एक बात और कहूँ, मैं देखिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता था, या अल्लाह मुझे इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चला, क्या 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 बोले? इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चला। ठीक। हाँ भाई यही रास्ता है सारे इस्लाम का, जी, हिम्मत का रास्ता ही है। बेशक जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है, उन्होंने हमारा ईमान बचाया है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मान जी, तो रहा हूँ मैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया, दीन को फैलाया, और उसी फैलाए हुए दीन को जब इन्होंने छांटना शुरू किया, बर्बाद करना शुरू किया, खत्म करना शुरू किया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आला हजरत को यहाँ पैदा किया, और उनके जरिए से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। गलत तो नहीं बोला मैंने? बिल्कुल, लेकिन मैं जो मौजू पेश करूंगा आप उस पे बोलिएगा, ठीक है? अभी तो ये मतलब मैं जो हूँ, मैं हूँ बरेली शरीफ से, ठीक है? खास बरेली शरीफ से हैं आप? हाँ अच्छा, बिल्कुल। कौन सी जगह से हैं आप? मैं बरेली शरीफ में हूँ भाई, ये जो मालूकपुर है आला हजरत की दरगाह के पास में, अच्छा, वहां से जब हूँ, लेकिन अभी हूँ आप वहाँ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जब बारगाह में हैं, तो मेरे भाई आपको तो बड़ी खुशी होना चाहिए थी। अरे कि यार चलो भाई, कोई बंदा ऐसा है सुनो कि सुनो सुनो, आदि पहले से मेरी बात सुनो। मेरे पीर व मुर्शिद सरकार ताजु शरी अली रहमा है, ठीक है? अच्छा हाँ, सुना होगा नाम आपने भी शायद। जी, उस अल्लाह के वली को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया तो जानती है। ठीक ठीक, माशाल्लाह। बात तो अब आप तो बोल रहे हैं कि वो जो रजाग्राफी है उसके खिलाफ मैंने नहीं बनाई है वीडियो। जी हाँ जनाब, मैंने नहीं बनाई है, नहीं बनाई है, नहीं बनाई है। मैं चलिए ठीक है, ठीक है। तो वो बंदा है कौन फिर? मैं आधे अधूरे किसी भी सिस्टम पर नहीं बोलता। हाँ ठीक है, जिस सिस्टम पे मुझे पूरी तहकीक नहीं होती मैं नहीं बोलता, और जिस पर मुझे तहकीक हो जाती है तो हाथ डाल देता हूँ पूरा गले में हलक तक। देखिए मैं एक सुन्नी हूँ, ठीक है? हेलो जी, सपोज दैट कोई बंदा सुन्नी है और वो आला हजरत को मानता है, लेकिन मतलब कि आला हजरत को नहीं मानता, वो ये बोलता है कि भाई ये पांचवें मसलक मत, तो उस पे आपका क्या वो है? एक मिनट, उस बंदे ने जो बात कही है वो क्या कही है, पहले तो ये देखिए कि रजा गिराफी वाले ने कहा क्या है, पहले उस बात को आप सुनिए। क्या बोला है उसने? रजा गिराफी वाले की किस बात का रद्द क्या है, पहले तो आप ये बताइए। मैं ये बात उससे पूछूंगा कि उसने कौन सी वीडियो को देख कर, मतलब अगर उसकी बात जायज हुई तो बेशक उसकी बात। अब तो आप पूरी वीडियो सुनिए ना। इसकी जो अगर खंजर वालों की आप गुफ्तगू बता रहे हैं तो पूरी गुफ्तगू आप सुनिए, उसमें वो अगर सुनो उसमें वो ऑडियो भी लगाया है मेरे भाई। सुनो बात का तो बहुत ज्यादा है, आप क्या नाम गरम चीज। पहले हमारी बात सुन लीजिए, जिस बात का रद्द किया है उस बात को सुन लीजिए, उस बात को उसमें लगाया है। ठीक, और अच्छा एक बात बताइए, हमने किस बात का रद्द किया? सुनिए जी। अब वो रजा गिराफी के खिलाफ, यानी उसके रद्द में उस बंदे के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, फिर वही बात कह रहे हैं। अरे भाई जो गलत बात कहेगा, जो गलत बात की पकड़ होगी कि नहीं होगी ये बताइए आप। मेरी बात तो सुने, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं तो आप ही की बात सुन रहा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि जैसे वो कह रहा है कि ईसाई जो है सब आपस में एक हो जाओ, तो हम इससे इनकार कब कर रहे हैं? एक हो जाओ, शिया देवबंदी वहाबी सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, मगर शरीयत के दायरे में जो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है उस अकीदे पर सब जो है वो तैयार हो जाएं, अपने ईमान और अकीदे को जो है दुरुस्त कर लें। आओ एक प्लेटफॉर्म। अहले सुन्नत का क्या अकीदा है, जरा पूरा खुल करके बयान करो। अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया गया। अल्लाह के, अरे यार तुम लोग सुनो क्या सुनो कर रहे हो? अभी कह रहे अकीदा बताओ, अब अकीदा बता रहा हूँ तो सुनो। ये तुम्हें बीमारी उमारी है क्या? बीमारी उमारी है क्या कोई वहाबी देवबंदी की तरह? जब तुम सुन्नी हो, बरेलवी हो, और फिर हुजूर ताज़ शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के जब मुरीद हो, तो फिर सुनो बात को। जब तुम जो मुझसे पूछ रहे हो उस बात को सुन लो। लेकिन तुम मेरी तो नहीं सुन रहे हो। फिर वो तुम्हारी तो शरीयत की देखूंगा ना।
मैं तो शरीयत की बात देखूंगा, तुम्हारी बात थोड़ी देखूंगा। नहीं तो बिना मैं भी अगर बिना शरीयत मेरा के खिलाफ जुर्म बोलूं देखे तो मुझ मेरी पे आप पकड़ करो। हुक्म लगा दो। सुनो मेरी बात, बिना मैं तुम पे मुझे क्यों हुक्म बिना लगाऊं? मेरा जुर्म देखे आप मुझ पे शरीयत का कानून जो है वो लागू कर दोगे? बताइए, फिर वही मेरी बात, पूरी बात सुन नहीं रहे हो। तुमने कहा कि अहले सुन्नत की जो है पहचान क्या है, कौन अहले सुन्नत है, जरा बताओ अहले सुन्नत का क्या अकीदा है। तो जब जो अकीदा है मैं वो बता रहा हूँ तो तुम कह रहे हो सुनो 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 सुनो। ये हाँ तो बीच में सुनो, तो मेरी बात तो सुनो। जान अहले बनाने सुन्नत की का आदत है सिर्फ इतना तुम्हारी। ही, अहले सुन्नत का बहुत सिर्फ इतना ही अकीदा है कि बहुत अल्लाह कुछ के है, नबी बता। को इल्म गैब है, इसके अलावा कोई अकीदा नहीं। सिर्फ एक ही चीज बोली है क्या मैंने? तुम एक ही चीज नाम ली और तुम कहने लगे सुनो सुनो। अरे लेकिन जो तुम हमारा अकीदा है बता रहा हूँ ना। अरे तुम खुदा से शुरू करो अच्छा ये ना। बताइए, अच्छा ये बताइए जाकिर नालायक को क्या मानते हैं, मुसलमान या काफिर? हेलो, समझ नहीं आया, एक मरतबा फिर जाकिर नालायक को क्या मानते हैं, मुसलमान या काफिर? आप क्या मानते हो? मैं तो काफिर मानता हूँ। हाँ तो वो काफिर है और काफिर ही है। अच्छा अच्छा, अल्लाह शायद उसे हिदायत दे दे। उसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन की है, और जो पता है रसूलुल्लाह की मुझे, शान में तौहीन करता है उसे वो हिदायत नहीं पक्का मिलती, ये भी मालूम है ना काफिर है। आपको? तो फिर आप कह रहे हैं अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और अल्लाह ताला का खुद ही फरमान है। हाँ हाँ, बोले बोले तो बोले। फिर इस बात का मैं भी आपकी रद्द करता हूँ कि जो आप कह रहे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है रजा के खिलाफ बोल रहे हैं। अल्लाह की इस बात में रजा ही नहीं कि जो उसके हबीब की शान में तौहीन करे उसको जो है हिदायत अता की अच्छा जाए। एक बात बता, ये बता आपने बता मत गुजरात करो, और आपने चुप, गुज- तमीज के दायरे में रह के। मैंने अभी कौन सी बात कह दी भाई? ये बोला कि अभी एक बात बता। नहीं नहीं, तुम्हें शायद क्या नाम गलत सुनाई देगी। अच्छा जाए। एक बात बता, ये अच्छा तुम्हें शायद भाई गलत सुनाई देगी। चलिए बोलिए आगे। और अगर शायद तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ईमान से बताओ, अगर वाकई तुम्हारे कान में ये आई हो आवाज। हाँ हाँ यही आई है, तुमने यही बोला है कि अच्छा ये बता। अच्छा एक बात बता, ये चलिए तो मैं आपसे इसकी भाई माजरत चाहता हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ बोलिए, आगे की बात बोलिए। आप जो अभी मुझसे कह रहे हो ना, आपने गुजरात नाम सुना होगा, वहाँ के एक बहुत बड़े आलिम है जिनका नाम है अब्दुल सत्तार हमदानी साहब। अच्छा ठीक है। ये पहले क्या थे? पहले वो देवबंदियों में पढ़ते थे, ठीक है, उन्होंने वहीं से तालीम हासिल की है, मगर जी धोखे में मेरी तरह लाइल्मी में। फिर जब उनको इन शैतानों के नापाक अकीदे की जानकारी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से निकले और इनकी ऐसी बखियों ढेड़ी कि इनका जीना हराम कर दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं? आप बोलिए उसके अलावा क्या क्या है? इनकी पहले की आपने तकरीर सुनी है? हाँ अहले सुन्नत के खिलाफ बोलते थे। बोलते थे? हम्म, पहले सुन्नत के मगर खिलाफ कभी बोलते रसूलुल्लाह की थे? शान में तौहीन की, ये बताइए। कभी इन्होंने वली की शान में तौहीन की? नहीं। तुम अगर नहीं मान रहे हो देखिए मेरी बात, तो हुजूर की शान में एक बात और बता दूं कि अगर किसी ने वली की शान में तौहीन की, वली की शान अजमत नहीं मानी, तो उसको कहते हैं गुमराह, और गुमराह को कभी भी हिदायत हो सकती है। मगर जिसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन उसे कहते हैं काफिर, और जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करता है ऐसे काफिर को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता नहीं करता। कौन सी किताब में पढ़े हो? कौन सी किताब में पढ़े हो? शायद मुझे ये बात ना पता हो, तो आप मुझे बताओ कौन सी किताब में पढ़े हो ये बात? अच्छा अच्छा अगर हमने ये बात अगर साबित कर दी तो आप इस बात को मान लेंगे कि रसूलुल्लाह बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भाई, अगर आप ये साबित करो, बाकायदा ये बात साबित करके इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कुरान का ही फरमान है जनाब। अरे क्यों नहीं मानेंगे ये यार? कुरान का ही फरमान है। आपको पता है? हाँ मैं बोल तो रहा हूँ कुरान का फरमान है, इंशाअल्लाह साबित कर दूंगा। तो करिए अभी। अरे आप हुजूर ताज़ शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और आपको नहीं मालूम? मुझे नहीं पता। खाइए खुदा की कसम के वाकई तुम जो है वो हुजूर ताज़ शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो। ये है करना बंद करो, खुदा की कसम खाइए और बोलिए कि मैं हुजूर ताज़ शरिया रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। अच्छा एक बात बता, मुझे नहीं लगता कि हुजूर ताज़ शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो। मोमिन के ईमान में शक करना कैसा है? तो फिर वही बात, मैंने तुम्हारे ईमान में शक नहीं किया, मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम हुजूर ताज़ शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो, कसम खा के बोलो। किस बात की कसम खाऊं बताइए? अल्लाह की कसम। इसी बात की कसम खाइए कि आप जो है वो हुजूर ताज़ शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, जैसा कि आपने बोला।
जैसा हाँ, कि आपने मुझे बिल्कुल बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोल दीजिए खुदा की कसम खा के, ये दोनों वक्तों का एक वक्त है। हाँ ठीक, बोलूं? आप सुनेंगे या नहीं? जी जी बोलिए। हाँ भाई, अल्लाह की कसम में हुजूर ताजु शरिया का ही मुरीद हूँ। अब ठीक है? सच बोल रहे हैं। क्या? बोल रहा हूँ, सच बोल रहे हैं। अच्छा, यानी अभी भी आपको कोई शक है? हाँ भाई, आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ डाउट लग रहा है, बहुत कुछ शक लग रहा है। बात ये है ना कि तुम सबसे बड़े दिल के ठेकेदार बन चुके हो। फिर वही बात आपको भी है क्योंकि आपकी बातें उस तरफ लेके जा रही हैं जिसको हुजूर ताजु शरिया ने ही रद्द किया। सुलह कुल्लियों का मेरे हुजूर ताजु शरिया ने रद्द किया। एक मिनट, मैं आपके साथ हूँ। सुलह कुल्लियत की बीमारी को जानते हो ना आप? अरे भाई सबको अब देखिए, आप मेरी जब बात आप ही नहीं सुलह सुनो, कुल्लियों की मेरी बीमारी बात ही को, नहीं सुनोगे। अरे मेरी बात भी सुन लो। जब अपने पीर की तुम नहीं मान रहे तो फिर किसकी मानोगे? मैंने जब आपके पीर सुनो, आपके पीर हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने उन सुलह कुल्लियों का रद्द किया। अरे मेरी भी तो सुन लो। उन सुलह कुल्लियों का रद्द किया है जो कभी मजार पे भी जाते हैं, जो कभी देवबंदरों के साथ भी रहते हैं। समझे? तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, जिसको कहते हैं तुम सब सही हो, और जो तुम कर रहे हो, हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों को खुद हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया है। तुम चाहते क्या हो? वहां भी देवबंदी एक हो जाए, कुफ्र और ईमान एक हो जाए? कभी नहीं हो सकता। और बोल दो अगर कुछ और बोलना है। बस मैं तो यही बता रहा हूँ, अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो कि वहाबी देवबंदी गुस्ताखे रसूल और ईमान वाले मोमिन भाई ये उन लोगों से मिल जाएंगे। देवबंदी फिरका है। हाँ जी जनाब। और बरेलवी? हम जमात हैं। और चिश्ती? क्या चीज? चिश्ती ये भी जमात है। चिश्ती ये भी जमात है। मगर मैं उन चिश्तों की बात नहीं करता जो कि शिया खबीस हैं। सरवर चिश्ती है। ठीक। ये कौन है? शिया है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, मगर क्या कहता है अपने आप को? चिश्ती। ऐसे चिश्तियों को हम नहीं मानते। ये आपका मामला बहुत ज्यादा ऐसा है कि यहाँ फैजान आला हजरत है, समझे जनाब? और किसी औलिया का फैजान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर फैजान आला हजरत होता है तमाम वलियों का फैज होता है वहाँ। ये निचोड़ है आला हजरत, जो हमारा पासवर्ड है ना, ये तमाम वलियों का निचोड़ है। जो आला हजरत को मानता है वो तमाम वलियों को मानता है। अरे बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। मैंने अभी तक आपकी किसी भी बात का इनकार करा? तो भाई जब आपने नहीं करा तो मुझसे झगड़ क्यों रहे हैं, मुझसे लड़ क्यों रहे हैं आप बताइए क्यों लड़ रहे हैं आप मुझसे? देखिए भाईजान, मैं एक बात बोल दूं आपको, ये जो हमारी और आपकी गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू को मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा आपके नंबर के साथ, ताकि आपके जानने वाले हमें बताएं कि हाँ वाकई ये बंदा जो है वो सुन्नी बरेलवी है। अरे मैंने अभी देखिए, सबसे बड़ी तुम्हारे अंदर अभी एक जहालत वाला काम। फिर वही बात, ये जहालत का नाम मत दो, क्योंकि जो वहाबी देवबंदी को मिलाने की बात करता है, सुन्नत को मिलाने की बात करता है। अभी तक ये जुमला बोला, ईमान से खाओ कसम बोला कि वहाबी देवबंदी एक हो जाओ। पूरी रिकॉर्डिंग एक मरतबा फिर से। तो रजा का जो पोस्टमार्टम किया है अगर ये खंजर वालों ने, इसकी बात का तो किया है, वो कहता है कि शिया सुन्नी सब एक हो जाओ। ऐसे कैसे हो जाओ? मेरी बात नहीं समझ रहे हो यार तुम। क्या मतलब रोटी वोटी खाते हो या नहीं खाते? उसकी उस बात का रद्द किया है। सुनो मेरी बात। हाँ, जाके पूछो अगर अगर अपना सुनो, ये बकवास और खानी जरा कम करे करो, ठीक है? सुनो, वहाबियों देवबंदियों की तरह जो है पागलपन की बातें करने लगे हो। अरे मेरी बात सुनो, बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? अरे सुनाओ ना। तो बात तो यही है, मतलब तुमने एक अहले सुन्नत वल जमात के एक मतलब बातों से, सिर्फ ऐसी बातों से, इस पे शरीयत का क्या कानून है जरा सुनाना पढ़ करके। अगर किसी जैसी मैंने बातें की हैं, इस पे क्या है शरीयत का कानून? मैं काफिर हूँ, गुमराह हूँ, क्या हूँ बताइए? भाई तुम्हारे पास फतवा लगाने नहीं आया, समझे? फतवा लगाएंगे उलमा। तो ये रिकॉर्डिंग किसी जाकर के इसीलिए डालूंगा, फिर वही बात तो सारे लोग उसको समझेंगे ना जो भी अहले सुन्नत के हैं। नहीं, पहले आप किसी मुफ्ती को दिखाओ और फिर उससे बोलो कि हजरत क्या है, इसका वक्त बताएगा। चाहे
चाहे तो आपको जो है वहाबी देवबंदी अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, चाहे तो आप अहले सुन्नत में ही रहे, ये तो वक्त फैसला करेगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? सब अहले सुन्नत में से निकले हैं, को काफिर बोला मैंने, सब अहले सुन्नत में से निकले हैं। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए ताहिरुल पादरी का आपने नाम सुना हुआ, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा अहले सुन्नत का आलिम था। बहुत बड़ा आलिम था बेशक, हाँ, उससे कुफ्र हुआ। मगर 1990 में मेरे आला हजरत के पर नवा से परपोते हुजूर ताबिश या आपके पीरो मुर्शिद, हाँ जी जी बिल्कुल, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, समझे जनाब। हाँ मुझे बहुत से लोग जो है उसके ताल्लुक से अनजान थे, नादान थे, नावाकिफ थे। हाँ ठीक, हाँ, उसका भी यही सिस्टम है कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ यार, सब एक कैसे हो जाए। और जब सुने, अब इसके बारे में आपको एक बात और बताऊं, जब ये बात सरकार ताज शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई थी ना, हाँ, तो उस वक्त ज्यादा अवाम या और जो उलमा इकराम थे वो ये बात मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जब उसकी बातें सुने, जब उसकी ताहिर की जब बातें सुनी, तो फिर उसके बाद में ये माना कि हाँ ये बंदा है गलत और ये साला काफिर है बिल्कुल, क्योंकि उसने बातें ऐसी करी जी। मेरे चलो तुम कुछ आखिरी बात कहने कह रहे थे, चलिए आप अपनी आखिरी बात कह दीजिए। हाँ हाँ सुने, आपके पास में फिर मेरा ये फोन करने का ये था मकसद कि मैं ये जानना चाह रहा था कि आप हैं या कोई और है वो बंदा। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ी सी आप मेरी, वो कोई और भाई हैं, मैं नहीं। हाँ, थोड़ी सी आप मेरी बात सुन, बोलिए। क्या किसी बंदे का ईमान और अकीदा इतना ज्यादा कमजोर है कि वो किसी के कहने पे ये बातें बोले कि सब एक हो जाओ, या जो उनका अकीदा है वो ही हमारा? रजा गिराफी वाले ने क्यों बोला कि शिया सुन्नी सब एक हो जाओ, मेरी बात पर आ जाओ? मैंने कसम खुदा की भाई ये बात उसकी नहीं सुनी है। अच्छा, समझ रहे हो ना? को मैं सलाम करता हूं, तुर्की को मैं सलाम करता हूं, ईरान को, कि इन लोगों ने, इन बड़ी कंट्रीज ने और उन कंट्रीज के लोगों ने शिया सुन्नी के वायरस को अपने अंदर आने ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। अगर दोस्तों आप में से भी कोई शिया सुन्नी गंद मचाने वाला इंसान है या कमेंट में आपको ऐसा कोई इंसान नजर आता है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं खुद लात मार के उसे अपने चैनल से बाहर निकालूंगा। मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं चाहता जो ऐसे वायरस के साथ जी रहे हों और अपनी कौम को, मुसलमानों को कमजोर कर रहे हों। हाँ, मैंने ये बात उसकी अभी तक नहीं सुनी। हाँ, जो अभी फलस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा था, इनका जो जंग हो रही थी, हाँ, ठीक है, अब उस बंदे की एकदम से जब वीडियो आए उसके मौलाना फारूक खान साहब, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जब उनकी तस्वीर, जब उनकी फोटो आई तो मैंने सोचा पता नहीं यार क्या बात हो सकती है, उसको खोल के देखा। अब आप यहाँ से बहुत ज्यादा गौर से सुने बात। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो जब उस वीडियो की स्टार्टिंग हुई तो अगर वाकई उस बंदे ने ऐसी बात है कही, ठीक है, अगर उस रजा ग्राफी वाले से कोई गलत बात है निकली हुई, उसने कोई ऐसी बात बोली है, ठीक है, देखिए हम किसी का भी भाईजान ना, मेरे भाई बात यही है, मुझे पूरी बात ही नहीं करने दे रहे, और तुम्हें पूरी बात की नॉलेज भी नहीं ना। मैंने कब कहा कि तुम वहाबी देवबंदी हो? नहीं, तुमने ये बोला ना कि वहाबी देवबंदी वाली बात नहीं कर, तो मैंने तुम्हें ये थोड़ी कहा कि तुम वहाबी देवबंदी हो। नहीं यार, तुम इतना ज्यादा तुम्हें, मतलब तुमने बोला कि भाई अल्लाह की कसम खाओ, ये करो, बिल्कुल, तो उसके बाद भी तुम्हें मतलब खिला देता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे पास सुन्नी बरेलवी बन के आते हैं। अरे नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी और हनफी हूँ, रज़वी हूँ। अरे आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि आपने किसी और से सुनी है कि ये लोग जो है अपने आप को बरेलवी बताते हैं और अपने आप को कम इल्मी बता देते हैं, जाहिल भी बता देते हैं और फिर निकलते हैं आलिम। सुनिए ना इनकी ऑडियो। मैंने आपके उसमें जो आप इनका रद्द करते हैं उनके काम का, जी, तो जो भी आपकी बातें होती हैं मैंने अब से करीब 4-5 महीने पहले सुनी थी, तो उसके बाद से मैं यार इन मामलों में ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मुझे बस हाँ, मगर तो जो हुजूर ताबिश शरिया का मुरीद होता है, ओरिजिनल मुरीद,
मुझे तो वो अपना पड़ता है इन बातों में। मुझे अपना ईमान और अकीदा बचाना है, और जी जी, मैं जानता हूं कि अकीदा मेरा जरूर बचेगा ईमान, जब एक मेरा ताल्लुक की ईमान और जानकारी हो। अकीदा क्या है। ठीक है, अब मैं अपना अकीदा, ठीक है, मैं आपको बताऊं अपना अकीदा। देखिए, बताने से कुछ नहीं होता है, बताने के लिए तो ताहिरुल पादरी का भी वही अकीदा है ना, मगर वो गुमराह क्यों हुआ मालूम है आपको? तो मुझसे आकर के मिलोगे, अगर आओगे बरेली कभी, बताओ। तो मैं तो बरेली शरीफ आता ही रहता हूँ, अभी पीछे भी गया था रमजान से पहले। हाँ, तो अभी अभी मैं नहीं पहुंचा हूँ अब तकरीबन। जब भी आऊंगा इंशाल्लाह तुम्हें दूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए, मिलना चाहते हैं तो मिल लेंगे, या आप अगर मिलना चाहते हैं तो आ जाइए हमको। आपको ये शक है ना, और आप उसको फिर इस तरीके से मतलब फिर वही बात, सोशल मैं मीडिया पे ऐसे डालूंगा। किसी शख्स से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी भी मिलावट हो। अच्छा, कौन सी बात मैंने अभी तक मिलावट की बोली? मिलावट की या नहीं की, मिलावट की या नहीं की, तुम्हारी बातों से मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यानी आप एक बात बताएंगे, आप आलिम हैं? मैं आलिम तो नहीं हूँ, तो अदना सा एक गुलाम हूँ, अदना सा एक जर्रा हूँ। हाँ, तो ठीक है, मैं भी अपना सा ही हूँ अहले सुन्नत का। ठीक है, मगर आपने कहा कि मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमान और अकीदा बच जाए। अरे भाई, जब मुझे पता है कि मेरा ईमान और अकीदा क्या है, तो मैं फालतू की बहस क्यों करूँ? तो फालतू की बहस करने के लिए हमें आला हजरत ने बोला है कि आप अपने ईमान और अकीदे की खुद भी हिफाजत कीजिए, और जो मोमिन मुसलमान भाई हैं जो उनके चुंगले फंस जाते हैं उनके भी ईमान और अकीदे को बचाइए। मेरा ईमान और हर मुसलमान पर फर्ज है। भाई, जब मेरा ईमान और अकीदा सलामत है, जब आपका सलामत है तो दूसरा का भी बचाओ। बस ये सिर्फ आप अपना बचाओगे, दूसरों का नहीं बचाओगे। सुने 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 सुने, देखिए मेरे भाई, किसी वहाबी को या किसी देवबंदी को या किसी शिया को सुन्नी हनफी बरेलवी बनाने से अच्छा है कि हमारा कोई भाई उनमें न बन जाए। समझ रहे हो? मैं वही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए काम करता हूँ, मैं उन भाइयों के लिए काम करता हूँ जो धोखे में अनजाने में कितना अच्छा होता है अगर लोगों के साथ। देखिए, आप काम वो भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसमें आप थोड़ा ऐड भी तो कर सकते हो भाई। क्या ऐड करूँ बताइए, अगर मेरी कहीं गलती है, कोई खामी है तो मैं उसको भी करूंगा। मैंने गलती कहाँ की? मैंने आपको अभी तक ये बोला कि आप गलती है? नहीं, अगर आपने कहा कि बात है और ऐड करो, अगर कुछ और है तो बताइए, इंशाल्लाह मैं उस पर भी अमल करूंगा। बात तो यही है, बुरे बंदे को अगर समझाओगे तो प्यार से बात करो यार, तभी तो वो तुमसे होगा ठीक। मैं मोमिनों से बड़े नरम दिल से बात करता हूँ। मोमिनों के लिए मेरा दिल बिल्कुल नरम है, बिल्कुल नरम, बिल्कुल मौम, मगर सिर्फ मोमिनों के लिए। अरे मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हो। चलिए बहरहाल, अच्छा बाद में बात करता हूँ। बाद में सुने मेरी बात। हाँ, अच्छा जल्दी बोलिए। पहले इस बात को, ठीक है, ये जो आपने मेरी रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे भी पास है जी, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसको अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैं इसको नहीं डालूंगा। हाँ, मगर मैं डालूंगा। ऐसा आपकी 32 मिनट और 12 सेकंड इस टाइम हो चुकी है, आगे को जितनी बढ़ेगी वो बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इससे पहले एक काम और कर लेना। बोलिए। आप पहले ये जाकर के किसी अच्छे आलिम को या किसी मुफ्ती को सुनाना। वो सारे आलिम सारे मुफ्ती सुन लेंगे, ठीक है, सारे आलिम सारे मुफ्ती सुन लेंगे, ठीक है। हाँ, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है, आप पहले भी आईली टेढ़ी बातें कर रहे थे, शायद वो पता नहीं आपकी, शायद वो आपकी गुफ्तगू पड़ी है या नहीं पड़ी है, अल्लाह बेहतर जाने, मुझे नहीं मालूम पहली वाली गुफ्तगू डल पाई है कि नहीं डल पाई है। मेरी बात सुनोगे? आप ही की तो बात सुन रहा हूँ काफी टाइम से। आप पहले इसे किसी आलिम को सुनाना, किसी मुफ्ती को सुनाना। बहरहाल मैं इसके बाद में उनसे ये पूछना कि हजरत, ये इसकी गुफ्तगू वाकई क्या गलत है? मैं गलत कानून होगा? मैंने गलत कहा कब आपको? अरे तुम, हकीकत बात ये है, आप तो खाना खा लड़ रहे हो, कोई ना बात ना हकीकत। हकीकत बात ये है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे आलिम, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, समझे मेरे भाई, ना मैं तुम्हें वहां भी समझ रहा हूँ ना देवबंदी समझ रहा हूँ।
न मैं तुम्हें शिया समझ रहा हूँ, न कोई कादियानी समझ रहा हूँ, ठीक, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो कुछ मगर जो तो हुजूर का खदिया का ऐलान है उसके भी खिलाफ हो आप। भाई मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी? मैंने अभी तक इसमें ऐसी भाई हम रद्द मजहबियत करते हैं, हाँ, आप क्या? हमसे लड़ रहे हैं। मैं कहा अभी तक मेरे हाँ? भाई मेरी बात सुने। देखिए उस टाइम भी आप मुझे समझाने आए थे, बताने आए थे, और आपने अभी खुद कहा कि मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ता। हाँ, मैं देखिए मुझे अपने ईमान की पता, मुझे अपने अकीदे की पता, ठीक है। अरे भाई इतना बहरहाल कमजोर भाई, थोड़ी हमारा ईमान है। आपने अभी पूछा कि थानवी, मैंने बोला काफिर। जी बिल्कुल, आपकी वो सारी बातें ठीक है, मैंने सुनी है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सारी कि आप बातें मैंने देवबंदी और आपकी, वहाबी वाली बातें कर रहे हो, और उसके बाद में बोल रहे हो कि मैं सोशल मीडिया पे डालूं। वो आपकी सारी बातें सुनी है, पर लेकिन अगर सोशल मीडिया पे डालना ही है तो आप बेशक डाल भी देना, समझ रहे हो ना। लोगों की इस्लाह के लिए बेशक इसको डाल देना, लेकिन इससे पहले किसी मुफ्ती या आलिम को जरूर दिखा देना, ठीक है। ठीक है। हाँ, और उसे दिखा करके अगर वाकई मेरी गुफ्तगू गलत है और इसमें मैंने कुछ ऐसी बात कही है कि अगर मुझसे कुफ्र हुआ है, मैंने कब कहा कि आप, या मैंने इसमें कोई गुमराह वाली बात की है, मैंने अभी तक ये जुमला नहीं बोला कि वहाबी देवबंदी सब एक हो जाओ। एक मरतबा फिर से ये रिकॉर्डिंग सुनना, समझ रहे हो ना। एक मरतबा फिर से ये रिकॉर्डिंग सुनना। मैंने ये नहीं बोला कि शिया या वहाबी या देवबंदी या जो कादियानी कुछ भी है वो, कि वो एक हो जाओ। मैंने अभी तक बोला, आपने अल्लाह की कसम खिलाई, ठीक है। आपने शक किया, मैंने सब कुछ आपको बताया कि मैं कारतारी शरिया का मुरीद हूँ। फिर उसके बाद में आपने अल्लाह की कसम खिलवा करके, अल्लाह की कसम खिलवा करके आपने जब ये बात बोली, जी जनाब, भाई अगर किसी मोमिन पे कोई शक करे, सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई किसी मोमिन पर शक करे, बहरहाल आप बात सुनोगे। तुम्हारी की तो बात सुन रहा हूँ जब, अगर कोई किसी मोमिन पे शक करे तो मेरे भाई उसका क्या है फिर बताइए। फिर वही बात, अरे मैं ये ऑडियो डालूंगा आवाम में, मैं ऑडियो डाल रहा हूँ, तुम्हें कोई बुरा भला थोड़ी कह रहा हूँ, तुम्हें कोई फांसी थोड़ी लगा रहा हूँ। तो आप इससे पहले ये काम जरूर कर लें। अभी ठीक है, लोगों को सुनवा दूंगा, ठीक है। लोगों नहीं बल्कि किसी मुफ्ती, हाँ ठीक है, मैं किसी आलिम को सुनवाया आप ये बात। कहता हूँ, ठीक है। बात ये है कि सबसे बड़े दिन के ठेकेदार तुम बने हुए हो, तुम्हें दूसरे की बात जो है ना वो सुनना ही नहीं है। ये ज्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसे तुम सुनना ही कहाँ चाह रहा हूँ। अरे तुम्हारी ही तो बातें सुन रहा हूँ, जब से तुमने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। अरे भाई तुमने जो इतनी देर से बोला, मैंने सुने जो बात मैंने बोलने के लिए आपके पास में। अरे मेरे पास अब वक्त नहीं है आपके। मेरी एक बात और सुनो आप, क्या बार बार एक बात सुनो, इसको भी ऐड कर लेना, अगर डालो तो इसे भी, लेकिन किसी मुफ्ती या आलिम को सुनाना। कही बात कहिए जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, मुफ्ती आलिम को सुनाना। हाँ ठीक है, पहले उसको सुनाना और उनसे ये बोलना कि हजरत क्या इस बंदे से कुफ्र हुआ है या गुमराह है या क्या है, तुमसे कुफ्र हुआ, बाद में डालना। मैंने कब कहा कि तुमसे कुफ्र हुआ? तो शायद अल्लाह तुम्हें इसका, अच्छा तुम उसके रजा वर्ल्ड वाले का रजा वाले का जो पैगाम लेके आए हो, मेरी बात सुने मेरे भाई, रजा वाले की पूरी तहदीद क्यों नहीं की? अब वो जो अजहरी खंजर है, अजहरी खंजर, अरे भाई मैं यार उसकी वो जो है उसका क्या नाम, रजा ग्राफी वाला, मैं उसकी न्यूज सुनता हूँ। मैंने इसीलिए डायरेक्ट उसी बंदे से मैंने भी अपना राब्ता सोचा। अच्छा रजा न्यूज वाले से आपने बात की? रजा न्यूज वाले से आपने बात की? नहीं की? मेरी बात सुनेंगे? उससे भी जरा बात कर लीजिए रजा न्यूज वाले से। तो भाई ने जो ये बोला है कि भाई हालात जो मुजरिम होता है ना, सुने जो मुजरिम होता है ना, तो पहले उसकी बात सुनी जाती है, उसके बाद में उससे कुछ बोला जाता है। तो आप पहले अच्छी तरह से आप बात सुने, और अगर वाकई इसमें मैंने कुछ गलत किया है तो बताएं।
میں نے کب کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، پر آپ اس نے میں کہا کہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب کی اس میں ویڈیو تھی پڑی ہوئی، اس میں عسکری خنجر تھا اور صرف شاید اس کا فوٹو تھا پڑا ہوا، جانے کیا تھا اس کا، تو جو ہے کیا نام اس کا، کیا نام ہے اس کا یار، ہاں نام اس کا رضا گرافی والے کا، محمد رضا. اچھا ٹھیک، شاید اس کا فوٹو تھا یا اس کا فوٹو نہیں تھا، یہ مجھے نہیں پتا ہے. اچھا اچھا تو وہ بندہ کرتا پہلے یہ ٹھیک، ارے بھائی تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں اپنے جب بھائیوں کا عقیدہ ایمان اچھا، تو بچانا ہے تو پہلے جو رضا گرافی والے نے جس ویڈیو میں یہ بولا کہ سب ایک ہو جاؤ، پہلے وہ چھوٹا سا حصہ اس میں ایڈ کرتے اور اس کے بعد میں وہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب کی بات ڈالتے. اب میں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ اس بندے نے ایسا بولا ہے. ہاں، تو مولانا فاروق بات کو خان صاحب نے جو بولا ہے وہ کیا بولا ہے؟ مولانا فاروق خان رضوی صاحب نے جو شیعوں کے عقیدے ہیں وہی اس میں بیان کیے، جی، اور وہ الحمدللہ مجھے تھے پتا، چونکہ میں نے فاروق خان رضوی صاحب کو بہت بہت سنا ہے، تھوڑا نہیں بہت سنا ہے. جی. اور آپ نے ان کا بھی نام سنا ہوگا، مولوی صغیر احمد جوخن پوری، جو جی. جوخن پور کے ہیں. جی، ٹھیک ہے، جانتے ہیں ان کو؟ ہاں جانتا ہوں. الحمدللہ یہ بہت ان سے اچھے تعلقات ہیں گھر سے. اچھا، آپ کے ہاں ہاں بالکل. جب آپ کے ان سے اچھے تعلقات ہیں تو پھر یار، پھر آپ کے جو نظریات ہیں وہ اچھے کیوں نہیں؟ ارے تم مجھ پھر پہ وہی شک بات، کر رہے ہو، شک کرنے کے بعد تمہاری باتیں تھوڑی بتا رہی ہیں، میں تھوڑی شک کر رہا ہوں. اچھا آپ نے وہ باتیں پکڑ لی اور جو میں تھوڑی شک بولا کر رہا وہ ہوں. نہیں سنے. میری بات سنے تو ہوتا یہ اچھا کہ وہ بندہ رضا گرافی والے کا، رضا گرافی سنے، رضا گرافی والا جو گرفت تھا، کس چیز کی ہوتی ہے؟ باتوں کی ہوتی ہے نا، لفظوں کی ہوتی ہے نا گرفت. میری بات سنو گے بھائی، رضا میں آپ گرافی ہی کی والے بات کی سن رہا ہوں. جب ویڈیو بنائے نا، جب اس کے رد میں یار ویڈیو بنا رہے ہو تو پہلے اگر اس سے جو غلطی ہوئی ہے تو پہلے اس کی ویڈیو تو دکھاؤ یار کہ تم ہمیں مجھ اس سے سے کیوں کہہ رہے ہو؟ جنہوں نے بنائی ہے ان سے جا کے بولو، مجھے کیوں بیچ میں تم مانتے ہو؟ مجھے بھائی مجھے تو یہی یار ہوا کہ بھائی آپ نے بنائی ہوگی. پھر وہی بات، آپ میں نے بنائی ہوگی، میں نے بنائی ہوگی. تمہیں جب یقین نہیں ہے، تمہیں جب پورا علم نہیں ہے، پھر مجھے کیوں کال کر رہے ہو یار؟ اچھا یعنی کہ تمہاری پہلی غلطی تو یہی ہے، تمہاری پہلی غلطی تو یہی ہے کہ تم نے لا علم میں مجھے کال کیا اور مجھ سے تم پوچھ رہے ہو. غلطی نہیں ہے یہ بھائی، میری چھوٹی سی جو ہے نا یہ غلط فہمی ہے، سمجھ تو رہے ہو؟ آپ جو کی آپ اس کو غلط غلطی فہمی ہو قرار یا دیتے غلطی ہو جو بھی ہے، تو جس کی بات ہے یار اس سے کہو نا یار، یا وہ جس چینل پہ آپ نے سنی تھی اس چینل پہ آپ بولتے کہ آپ مجھے اپنا نمبر دو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا میرا نمبر یہ ہے، آپ مجھے کال کرو. مجھے یہ لگا میرے بھائی کہ آپ نے بنائی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے پاس میں فون کیا تھا. میری آواز اور آپ پھر کو نہیں معلوم ہے کیا؟ سنیں شروع میں آپ نے جب میری بات نہیں سنی آپ مجھے مجھ سے غصہ بات آیا کر آپ چکے پر ہیں کہ پہلے یار بھی. میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں بندہ سن نہیں رہا ہے. پھر وہی بات، ارے جب تم کہیں کے منسٹر ہو، کون ہو؟ آرام سے زیادہ منسٹر ہو غصہ تم کہیں کے؟ زیادہ تم میری بات غصہ سن نہیں پا رہے ہو اور میں تمہاری بات کو سنوں؟ اور کون سی بات نہیں سنی ہے میں نے تمہاری؟ اتنی دیر سے تمہاری تو بات سن رہا ہوں. ہاں تو جو میں نے ابھی بات بولی نا کہ پہلے اس رضا گرافی والے کی غلطی والی بات کو ڈالتے پھر اس کے بعد میں مولانا فاروق خان رضوی یہ صاحب کی بات منسٹر کو اپنے ڈالتے. گھر کے اندر ہی رکھنا. اگر اس کو ڈالو پھر وہی کہہ رہا ہوں، منسٹر پن اپنے گھر کے اندر ہی رکھنا. میری بات سمجھے؟ سنو گے؟ مجھے مت دکھانا یہ منسٹر پن. بات سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ فالتو کی بات کرنا شروع کر دی. ارے دھیرے بولو اتنا زیادہ غصہ ہونے کی تمہاری بات سنی ہے کہ نہیں سنی ہے میں نے؟ مجھے یہ بتاؤ. کیونکہ ایسا ہے نا غصہ پھر ہر آدمی ہونا جانتا ہے، اس لیے ہاں میں بھی جانتا پیار ہوں. محبت سے. تو تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میری بات سنی نہیں رہے ہو، میری بات سنی نہیں رہے ہو؟ ارے یار کیسے سنو تمہاری بات؟ زبان سنوں اپنی. ارے جو میں نے ابھی بولا اس میں میں نے بھی کون سی غلطی کر دی یہ تو آپ بتائیں. ارے آپ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ بات کسی اور کی اور بولتے رہے ہو. ارے بھائی غلط فہمی ہو گئی. اور میں جس کے خلاف بولتا ہوں نا تو چیر پھاڑ کے بولتا ہوں اور میں دبا کے نہیں بولتا ہوں. ارے بالکل بولو سمجھے جناب؟ میرے بھائی بالکل بولو. ہاں تو جس کی بات ہے اس سے جا کے مت بولو. پھر وہی بات. تو ایسا ہے، آپ کو میرے تعلق سے بھی جانکاری ہے اور جس بھائی نے وہ آڈیو بنایا ہے یا جنہوں نے بات کی ہے ان کی بھی جانکاری ہے.
क्या तुमने मुझसे पहले कभी बात नहीं की? आपका मेरे पास में फोन नंबर था, एक मर्तबा आपसे मैंने बात की थी, और आपने मुझसे पहले भी बात की थी, पहले भी इसी तरह की जो है बातें की थी आपने या किसी और शख्स ने मुझे उसका भी, मैंने उसका फोन नंबर भी जो है वो आपसे लिया था। वो क्या नाम है उस बंदे का, वो जर्जिस, और उसको कॉल भी की थी। अच्छा, मुझसे लिया था नंबर? नहीं, शायद आपसे लिया था या कोई और बंदा था, मुझे नहीं पता इस बारे में। बहरहाल तो सिर्फ ये है कि पहले वो यार रजाग्राफी वाले की बात को डालते। अरे यार, मुझे ये नहीं पता कि वाकई उससे यार ये बात हुई है या नहीं हुई। अगर हुई, मैं जब रजागिराफी को इतना जानता ही नहीं, मैं नहीं, रजागिराफी हाँ है, बहुत बड़ा चैनल वाला है, उसकी मैंने सुनी है। अरे भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसने ये मतलब उसके रद्द में वीडियो बनाई। अगर उससे गलत बात हुई है तो बेशक पहले उसकी बात को डालते कि भाई इससे ये गलती हुई है, और इस पे जो अब शियाओं का अकीदा था वो तो मौलवी फारूक खान रज़वी साहब की तकरीर में वो जो अच्छा, अब मैं उसको तलाश करूंगा, मैं देख के आपको भेजूंगा क्या मामला है, क्या बात है। हाँ, अरे भाई ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। अब आपने एक वीडियो डाल दी तो उससे यार बंदा क्या समझेगा, बताएं, आप बताएं। क्या समझेगा? सही समझेगा, जो भी समझेगा। जो उसने गलती की है, जो जिसने देखा है वही तो उसने बोला होगा। चलिए आप ऐसा करिएगा, वो जो उसकी जो वीडियो है ना वो रजाग्राफी वाली की, अगर आपको मिल जाए तो मेरे पास में भेज दें। आप भेजिए मुझे, या मैं उस बंदे से पूछ लूंगा। नहीं, मेरे पास तो वीडियो ही नहीं है वो, और ना मैंने उसकी वीडियो देखी है ज्यादा। अच्छा, एक मिनट जरा लाइन पे रुको।